I scored 100 out of 100 in my class 10th board exam, and if you're going to click away thinking it's going to be another video just telling you to practice more, hear me out. I did not solve every book in the market, neither did I study maths for 10 hours a day, but today I will share the exact strategy I used, what resources I followed, how I did my revision, and how I planned my syllabus and how I completed each and every chapter in the perfect way to get the perfect score of 100 out of 100. Let's get started. First of all, I'll clear out the biggest myth, which is NCERT कर लेना sufficient है for maths, which is not at all true. बच्चे generally सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ के जाते हैं and बस PYQs practice करके चले जाते हैं and they think it is sufficient. But no, it is definitely not sufficient, and I'll tell you sufficient क्या है and कितना है. Okay, so yeah, stay tuned for that. NCERT is absolutely essential. It builds the foundation, but if you are someone who is targeting 95 plus, 98 plus, or even 100, then NCERT is not enough. What NCERT does is that it builds the concept, but what gets you that perfect score is what you do after completing the NCERT. Now let me talk about the resources which I used beyond the NCERT. So first of all, सबसे important चीज़ है कि तुम exemplar को पूरा complete करो and सारे के सारे उसमें जो examples है, questions है, everything you need to practice because it has good quality questions. Difficulty is also good. वहाँ पे easy questions भी है, medium भी है, difficult भी है, and बहुत सारे PYQs directly exemplar से बन जाते हैं, especially the MCQs. So yeah, make sure to practice each and every question of the exemplar. सबसे पहले तुम NCERT करो, and while you're practicing the NCERT, make sure you do all of the examples. Don't skip examples thinking that they are not important. They are actually more important than the exercises. So yeah, NCERT और पूरा examples के साथ, and then move on to the exemplar. Now if you have practiced both of these things, then you can move on to a good question bank. Now let me tell you मैंने कौन सा question bank use किया था. वैसे तुम कोई सा भी purchase कर सकते हो. I am just telling you the question bank that I used, and I honestly found it super helpful. I used this question and concept bank from PW. This is the latest edition 2027 वाला, and ये ऋतिक सर ने लिखा है, so it's obviously going to be good. It has 2026 का solved paper, which is the most important thing जो तुम्हें practice करनी है. उसके अलावा ऐसे concept maps भी हैं जिनसे तुम फटाफट chapter revise कर सकते हो. And you have so many questions to practice. बहुत सारे competency based questions हैं. You can easily buy this book from PW store and coupon code use कर लेना ACE150 for additional discount. बाकी the link is in the description. Now, other than question bank, you need to practice a lot of PYQs. This also you can find online for free. And तुम्हें previous year papers भी practice करने हैं. अगर तुम्हें PYQs नहीं practice करने, honestly I recommend you should practice chapter wise PYQs while you're completing a chapter. And जब तुम्हारा पूरा syllabus हो जाता है, या even अगर तुम्हारा half syllabus complete हो जाता है, like by first term, then you can start practicing sample papers and previous year papers. Like just skip the questions जो तुम्हें नहीं आते, जो आगे वाले topics के हैं. And अगर तुम्हारा पूरा syllabus complete हो चुका है, then practice previous year papers. They are super important, especially 2025 के and 2026 के, क्योंकि उनकी question quality is the best. उसके अलावा मैंने अपने class notes revise करे थे, and I used to always make a list of things जो important है हर chapter के लिए, like याद रखने वाली चीज़ें, for example formulas और some short trick, and इन सारी चीज़ों को combine करके मैंने एक PDF में डाल दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि तुम उसको एक्सेस करके यूज़ कर सको. उसके अलावा आई हैव ऑल्सो मेड अ PDF ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के, कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लेना अगर तुमसे पूरी NCERT भी नहीं होती है. वैसे आई रिकमेंड प्लीज़ पूरी कर लो, बट अगर तुमने पूरी कर भी लिया ना एंड तुम्हें रिविजन करना है जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो या आई हैव लिंक दैट ऑल डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, तो तुम वहाँ से चेक कर सकते हो, एंड इट्स ऑल फॉर फ्री. सो या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. One thing which was an absolute lifesaver for me was my error notebook, and I didn't even make a proper notebook for it. I just made like sheets ऐसे, and chapter wise मैं वहाँ पे questions लिख देती थी जो मेरे question गलत हो, या अगर मेरे को कोई question बहुत अच्छा लगा है, और if there is like a different way of thinking in any particular question. And before each and every exam I used to revise these questions once again, and then मेरे को ये questions इतने ज़्यादा thorough हो गए थे कि वो mistakes मेरी वापस कभी भी repeat नहीं हुई.
एंड अगर मुझसे कोई सिली मिस्टेक भी होता था, आई यूज टू जस्ट राइट इट डाउन ऑन दैट पीस ऑफ पेपर. तो मैं हर एक छोटी छोटी गलती ना पिक करके सुधारनी पड़ेगी if you want the perfect score of 100 out of 100. Like it's not easy at all. मतलब एक ना एक मार्क्स तो कटना ही चाहिए. I used to think this back in 7th grade when my mom used to tell me कि मैथ में तो 100 आने चाहिए. I was like मैथ्स में 100 कैसे आ सकता है, मतलब मेरा कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही ना. But yeah, now when I'm in 10th grade and अब तो मैं 11th में आ चुकी हूँ, I have realized कि that is like just my बेकार सा thinking and that's just my mindset. You can definitely score 100 in maths if you work on each and every error that you have made throughout the year. I am sure सबके स्कूल वाले इतने एग्जाम्स तो ले ही लेते हैं कि तुम्हें अपनी सारी की सारी गलतियाँ समझ आ जानी चाहिए कि तुम क्या क्या गलतियाँ कर सकते हो एंड मेक इट अ पॉइंट कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट ना हो. अगर तुम्हारा कोई कैलकुलेशन एरर होता है देन लाइक डू योर कैलकुलेशन स्लोली एंड राइट ईच टाइनी स्टेप. अगर तुम्हें 2+2=4 लिखना है ना, वो भी लिखो. लाइक डोंट फील एम्बैरेस्ड, इट्स जस्ट गोइंग टू enhance your मार्क्स एंड तुम्हारे कैलकुलेशन एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे. एंड अपना कैलकुलेशन भी पेपर में नीटली किया करो सो दैट जब तुम उसको वापस चेक करो तुम्हारे लिए ईजी हो चेक करना. अगर तुम अपना कैलकुलेशन मैसी वे में करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम रिवाइज कर रहे होगे तुम्हें वापस कैलकुलेट पूरा करके देखना पड़ेगा टू चेक अगर तुमने करेक्ट किया या फिर नहीं किया. सेकेंड, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ एरर. थर्ड ऑफ ऑल, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन एरर होता है, राइट योर नंबर्स नीटली. कहीं तुम लाइक 9 को 6 लिख रहे हो, 7 और 1 में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ये सारी गलतियाँ ताकि तुम्हारी ना हो, नंबर को साफ साफ लिखो ताकि तुम खुद ही कंफ्यूज ना हो जाओ कि तुमने क्या लिखा हुआ है. एंड एक्स को भी कंफ्यूज मत करना लाइक मल्टीप्लिकेशन वाले साइन से. ये सारी मिस्टेक्स है जो हमारी हो सकती है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस बिफोर हैंड. नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज ना करना. अपने स्कूल के मार्क्स से दुखी होकर उनको लेके बैठ जाना. आई यूज टू एनालाइज ईच एंड every paper and I used to add things into my mistake notebook and I used to keep on revising it again and again जब तक मैं उससे थरो ना हो जाऊँ. प्लीज़ प्लीज़ एनालाइज योर मिस्टेक्स. डिसाइड तुम्हारी मिस्टेक क्यों हुई है, डिसाइड क्या कॉन्सेप्चुअल एरर रह गया था, लाइक सिली मिस्टेक था, कैलकुलेशन एरर था, एंड उसको तुम सुधार कैसे सकते हो उसका पूरा प्लान बनाओ. अपनी मिस्टेक को तुम्हें फिक्स करना है. अगर तुम्हें 100 मार्क्स चाहिए, अगर तुम ये सब नहीं करते हो, you will not get 100 because you're not working on your mistakes and these small mistakes will cost you 1 or 2 marks in your final board exam. Next thing is watching lectures endlessly. I am sure most of you have purchased some of the other online batches and अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बस लेक्चर देखे जा रहे हो और तुम्हारी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, let me tell you that is not true at all. जब तक तुम खुद से अपने हाथों से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है. मैथ्स में अपने टीचर को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो देखना, इट्स नॉट स्टडिंग बट प्रैक्टिसिंग दो सेम क्वेश्चंस योरसेल्फ ऑन अ नोटबुक यूजिंग अ पेन, दैट इज स्टडिंग. दैट वे यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड अगर तुम्हें कुछ समझ आया है या फिर नहीं आया है. बिकॉज अगर तुम किसी टीचर को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए देखोगे तुम्हें 100% लगेगा कि तुम्हें सब कुछ आ गया है, when 90% ऑफ द टाइम दैट इज नॉट द केस. द नेक्स्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज दैट दे लीव रिविजन फॉर द एंड, कि हमने एक बार पढ़ लिया उसे छोड़ देते हैं एंड जब बोर्ड एग्जाम आएगा हम इसको तब रिवाइज करेंगे. बट प्लीज़ डोंट डू दैट. रिवाइज एट अ सर्टेन इंटरवल. जब तुम्हें लग रहा है कि तुम भूलने लगे हो, जब तक बोर्ड आएगा तुम तब तक वेट करोगे, देन तुम मोस्ट ऑफ द स्टफ भूल जाओगे. लाइक रिविजन में तुम्हें वापस पूरा क्रैम करके पढ़ना नहीं है. जस्ट रिवाइज द बेसिक फॉर्मूलाज जो मैंने शीट दी है तुम उधर से रिवाइज कर सकते हो एंड उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस जो तुम्हारे लास्ट टाइम जब तुम चैप्टर को एक्चुअली में कर रहे थे तब तुम्हारे जो क्वेश्चंस गलत हुए थे तुम बस उनको वापस से प्रैक्टिस कर लो. दैट हार्डली टेक्स लाइक 2 आवर्स. यू कैन गिव योर सेल्फ 2 आवर्स लाइक एवरी वीक. सपोज तुमने एक दिन कोई चैप्टर पढ़ा, एक हफ्ते बाद उसको इस रिविजन टेक्निक से रिवाइज करो, कर लिया, उसके बाद मे बी वेट फॉर लाइक 3-4 वीक्स, देन रिवाइज इट अगैन एंड आफ्टर लाइक 2 months देन रिवाइज इट अगैन. मतलब ऐसे ऐसे इंटरवल में तुम उसको रिवाइज करते जाओ एंड देन वो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगा एंड देन तुम उसको नहीं भूलोगे एंड तुम्हारी सारी मिस्टेक्स भी तब तक करेक्ट हो चुकी होंगी. सो या दिस इज द रिविजन टेक्निक which you can use. It certainly worked out for me, so I hope that it will work out for you as well. उसके अलावा कुछ एग्ज़ाम डे टिप्स भी है मेरे पास, मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगी. देखो, तुम लोग अपने सैम्पल पेपर्स को या अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को जिस ऑर्डर में अटैम्प्ट करते थे ना, तुम उसी ऑर्डर में बोर्ड एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना. आई डू नॉट रिकमेंड चेंजिंग योर ऑर्डर लास्ट मिनट अनलेस एंड अनटिल वो सेक्शन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, जो आई डोंट थिंक विल बी द केस इफ़ यू आर स्टडिंग रियली हार्ड एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट हाउ टू गेट 100 out of 100. सो आई पर्सनली स्टार्टेड फ्रॉम द
सेक्शन जो 5 मार्क्स का होता था, आई यूज्ड टू डू डी सेक्शन, उसके बाद ई सेक्शन, उसके बाद बी, सी एंड लास्ट में MCQ. एंड ऑनेस्टली ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम आई यूज्ड टू रीड एंड लाइक मेंटली डिसाइड कैसे कैसे केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है. एंड अगर उसको करने के बाद भी मेरे पास टाइम बचता था, आई यूज्ड टू सॉल्व द ईजी वाले MCQs फटाफट. लाइक आई यूज्ड टू मेक अ स्मॉल डॉट यूजिंग माई पेन ऑन माई क्वेश्चन पेपर, ताकि मेरा बाद में टाइम सेव हो. एंड लाइक मेरे ना बोर्ड एग्जाम से पहले मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया था, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, डू नॉट स्टार्ट पैनिकिंग एंड जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड मूव ऑन एंड थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन लास्ट में. लाइक छोड़ दो उसे, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट, डोंट कॉम्प्रोमाइज तुम्हारा बाकी सारा पेपर जो तुम्हें आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन क्वेश्चन. इफ़ यू कम अक्रॉस दिस सिचुएशन, प्लीज़ क्लोज योर आइज, टेक 3 ब्रेथ्स. ये ना तुम्हें करने में 1 मिनट भी नहीं लगने वाला. एंड मूव ऑन, छोड़ दो उसे, कितने भी मार्क्स के क्वेश्चन हो छोड़ दो उसे, लास्ट में देखना, लास्ट में देखना. अगर तुमने उस एक क्वेश्चन पे 15 मिनट या फिर आधा घंटा भी स्पेंड कर दिया ना, यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग द रेस्ट ऑफ द एग्जाम जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो. सो या ताकि तुम ये चीज़ ना करो, उसको then and there leave it. So yeah, basically these are the tips that I wanted to give you all on how to score 100 out of 100 in the maths board exam. I hope these are not generic because I am telling you all my secrets which I used to get this perfect score. And बाकी let me know in the comments अगर कोई senior ये video देख रहा है, बाकी tips तुम्हें अपने juniors को बतानी हो. And I really hope this video helped you out. If it did, make sure to subscribe my channel. एंड मैं और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ तुम्हारे लिए, लाइक क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, विच विल हेल्प यू आउट फॉर योर बोर्ड एग्जाम और एनी अदर स्कूल एग्जाम और एनी थिंग एट ऑल. लाइक लेट मी नो कॉमेंट्स में तुम्हें और क्या क्या कॉन्टेंट चाहिए. एंड बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों के लिंक होंगे, NCERT एग्जाम्पलर के एंड जो मैंने फ्री रिसोर्सेज तुम्हारे लिए बनाए हैं खुद से उनके, एंड क्वेश्चन बैंक के भी फिजिक्स वाला का जो आई यूज़ लास्ट ईयर. सो इफ़ यू वांट टू परचेज दैट यू कैन बाय दैट फ्रॉम देयर. एंड बाकी जो सारे फ्री रिसोर्सेज है वो तो तुम यूज़ कर ही सकते हो. सो या डू सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय बाय.